Hi everyone, welcome to the fourth video of LRDI DPP. So in this video, I'll provide you a practice set from set theory maximization minimization topic, and this is really a good set. So watch this, try this set first, and then watch the solution that comes afterwards. So let's begin and let's understand what's the set. But before that, in case if you are attending my session for the first time, then this is a bit about myself. Okay, so here is the set. This is almost you can say at par with the kind of questions, set theory questions that are being asked, and if you observe, this is of four sets. Okay, so definitely it is, you can call it moderate or moderate difficult level of set, right? So you can go through the data. If you want, you can pause the video over here, and then you can go through the data, and then you can answer this question. So here is the first question of the set, then the second question. So try for these questions, and if possible post your answer in comments also, so that I can come to know how many questions did you get right. This is the third question, and this is the fourth question. In fact, I've also posted the PDF of this particular session in the group. So I had provided this question, this set in the group for you to try, and then you are expected to watch the solution to verify your answers. Okay, so let me explain this question now. I'm assuming that you would have given a sufficient try. So if you are at the early stage of your preparation, so even if you require to spend say 30-40 minutes on a set, that's perfectly fine. That's very normal. Then once you'll practice more sets of different variety, gradually your time will go down. So don't worry about that. And let's look at the solution now. Okay, before that, just want to quickly tell you that make sure that you all have joined this Telegram group so that you can get updates about all my sessions and whatever DPP I provide, so you can access them. And yeah, this is the URL from where you can access all my free videos for quant as well as LRDI, and for other subjects as well. I have also provided plenty of free tests in this link, so do explore that. And yes, in case if you're planning to go for plus or iconic subscription, don't forget to use my code SHAR10. Do recommend to your friends. And before we move, guys, don't forget to hit the like button and do share it with all your friends. So let's understand how to solve this question. In fact, let me just go ahead with my रेगुलर लैंग्वेज विच इज़ हिंदी. तो हिंदी में डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे. सो इन अ ब्रांड इक्विटी सर्वे 250 persons were asked to choose their favorite apparel brands from four brands, that is Aero, CK, Levi's and YSL. So there are four brands and there are 250 people. Each person can choose more than one brand, but has to choose at least one brand. मतलब we know that each of these 250 people are part of one of this set. Okay, so no one is outside this set. Now you would be wondering, why have I drawn this kind of diagram? So if you read the first point, it clearly says that everyone who can choose Aero also choose CK. Now guys, if you have attended my session, I have taught you one approach, one specific diagram to represent four sets, but here we will not require to use that particular variety, that particular approach, because we know that everyone who has chosen Aero has chosen CK as well. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एरो को सीके के अंदर रख देता हूँ. तो ये एरो ले लेते हैं यहाँ पे, ये एरो ले लो, तो ये सीके ले लेते हैं. लेट मी यूज डिफरेंट कलर, राइट. सो ये सर्कल जो है ग्रीन कलर का वो एरो का है, और ये बड़ा वाला सर्कल सीके का है. तो इस तरीके से करना बेटर रहेगा. फिर दूसरे हमारे कौन से ब्रांड्स हैं, तो लिवाइज एंड वाईएसएल है. तो ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. अब इसको थोड़ा सा रीड करते हैं. द नंबर ऑफ पीपल हु चोज एग्जैक्टली थ्री ब्रांड्स. नॉर्मली हम थ्री ब्रांड्स को ऐसे रोमन थ्री से इंडिकेट करते हैं. वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ पीपल हु चोज ऑल फोर ब्रांड्स. तो कैन आई से इट वॉज टू टाइम्स द नंबर ऑफ पीपल हु चोज ऑल फोर ब्रांड्स. तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया. ओके, 50% चोज लिवाइस बट नॉट वाईएसएल, while 70% chose एरो बट नॉट लिवाइस. ठीक है, 50 लोग ऐसे थे जिन्होंने लिवाइस चूज किया बट वाईएसएल चूज नहीं किया है. तो वो 50 लोग कौन हो गए, तो वो ये वाले लोग हो गए. दिस हैज टू बी 50. ठीक है, वाइल 70% चूज एरो बट नॉट लिवाइस. एरो जिसने चूज किया बट लिवाइस चूज नहीं किया. तो हमें पता है कि लिवाइस का ये वाला सर्कल है. तो एरो चूज किया बट लिवाइस चूज नहीं किया, मतलब इतना रीजन ये 70 है. बट अभी हम कुछ भी नहीं लिखेंगे. नाउ दिस लास्ट थ्री पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. Among those who did not choose Aero, 40% choose CK. तो जिन्होंने एरो चूज नहीं किया है, ऐसे कौन से लोग हैं, तो एरो के बाहर वाले सारे लोग हैं. उसमें से 40 लोगों ने सीके चूज किया है. मतलब एरो और एरो के बाहर बट सीके के अंदर ये जो पार्ट है वो 40 है. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. ठीक है, सीके एंड एटलीस्ट वन ब्रांड, सॉरी, तो सीके के साथ में एटलीस्ट वन ब्रांड मतलब क्या आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा. सो ये हमारा 40 है.
ओके, वाइल 100% डिड नॉट चूज सीके, सो मतलब ये जो रीजन है वो 100 है, तो इससे भी हमें कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। 90% चूज एग्जैक्टली वन ब्रांड, ठीक है, तो एग्जैक्टली वन ब्रांड को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तो ये 90 है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है, एवरीवन हु चूज लिवाइस चूज एट मोस्ट वन अदर ब्रांड, ठीक है, तो जिसने लिवाइस चूज किया है तो लिवाइस के साथ में उसने एटमोस्ट एक और ब्रांड चूज किया है, मतलब लिवाइस के साथ में 2 या 3 ब्रांड चूज नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैन आई से ऑल 4 ब्रांड जीरो हो जाएगा। इनफैक्ट जहां पे भी 3 ब्रांड्स लिवाइस के साथ में और कोई 2 ब्रांड आ रहे हैं वो सारा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? तो दोस्तों अगर चारों ब्रांड जीरो है तो कहने से 3 ब्रांड वाले सारे जीरो हो जाएंगे, तो 3 ब्रांड कहाँ पे आ रहा है, 3 सर्कल का इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है, तो कहने से ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 सर्कल का इंटरसेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो ये सेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने रिप्रेजेंटेशन सही से किया और ये स्टेटमेंट को सही से इंटरप्रेट किया तो ये सेट आपका बन जाता है LOD1, दैट इज लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1। पर अगर आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाए तो शायद आप में से काफी लोग ये लगेगा कि सर ये तो हमने सोचा ही नहीं या ये हमसे सॉल्व नहीं हुआ। तो एक ही चीज है कि आपको रिप्रेजेंटेशन सही से करना था, क्योंकि ऑलरेडी 4 सेट है तो कंफ्यूज होने के चांसेस इसमें ज्यादा हो जाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है। अब देखते हैं कि आगे कैसे ये सेट सॉल्व होगा, ठीक है। चलो, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। सपोज मैं इसको ए कह देता हूँ, यहाँ पे बी कह देता हूँ, फिर इसको सी कह देते हैं, इसको डी ई, ठीक है, और यहाँ पे एक एफ ले लेते हैं और जी ले सकते हैं। बट हमें कुछ और चीज़ें बताइए, तो लेट्स सी कि इतने सारे वेरिएबल लेने की जरूरत ना पड़े, तो वापस एक बार रीड करते हैं। सो ये पॉइंट तो हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, लेट्स रीड दिस वन। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हाउ कैन वी से कि this number of people who chose 3 brands are double the number of people who chose 4 brands। सो मैथमेटिकली ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है, बट यस कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका जीरो है तो ये भी जीरो आएगा, तो आप कह सकते हो कि 0 is 2 times 0। ये मतलब थोड़ा सा इसमें वियर्ड कह सकते हैं, बट यस कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। अब देखते हैं, 50% चूज लिवाइस बट नॉट वाईएसएल। 50 लोगों ने लिवाइस चूज किया है बट वाईएसएल चूज नहीं किया, वेल 70% चूज एरो बट नॉट लिवाइस। अब देखो 70% ऐसे हैं जिन्होंने एरो चूज किया है बट लिवाइस चूज नहीं किया है। सो एरो बट नॉट लिवाइस मतलब क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, उसमें ये तो जीरो है तो ये सीधा सीधा 70 हम लिख सकते हैं, तो एक वेरिएबल कम हो गया। देखते हैं आगे कुछ और हम कर सकते हैं। अमंग दोज हु डिड नॉट चूज एरो 40% चूज सीके एंड एटलीस्ट वन मोर ब्रांड, तो ये तो काफी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अब यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज मैं इसको ए कह देता हूँ, मतलब ओनली सीके वाले ए हो गए, सीके के साथ ओनली लिवाइस वाले बी हो गए, ओनली लिवाइस सी हो गया, लिवाइस एंड वाईएसएल डी हो गया, ओनली वाईएसएल ई ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और हमें लेना पड़ेगा, राइट, ये एफ ले लेते हैं। तो 6 वेरिएबल मुझे डिफाइन करने पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ओके। तो अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो ये टोटल 250 है, 250 में से ये 70 हटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, सो 180 बचेगा। तो कैनाई से ये जो 6 वेरिएबल हमें दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, वो कितना होना चाहिए हमारा, 180 होना चाहिए। सो ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, ये हमें एक चीज पता चल गई। नाउ 50% चूज लिवाइस बट नॉट वाईएसएल, तो 50% चूज लिवाइस बट नॉट वाईएसएल, मतलब ये रीजन मेरा 50 है, तो कैन आई से बी प्लस सी इज 50। फिर आगे क्या लिखा है, 70% चूज एरो, बट ये तो हमने कर लिया, सो ये पॉइंट इज ऑल्सो टेकन गया। सो पहले 3 पॉइंट हमारे हो गए हैं। अमंग दोज हु डिड नॉट चूज एरो, जिसने एरो चूज नहीं किया है, 40% चूज सीके एंड एटलीस्ट वन अदर ब्रांड। तो जिन्होंने एरो चूज नहीं किया है, मतलब एरो के बाहर वाले कौन कौन वैल्यूज है सीके के अंदर, तो कैन आई से बी एंड एफ, ये दो वैल्यू ऐसे हो गए कि जिसमें लोगों ने सीके के साथ में एक और ब्रांड चूज किया है, सो वो क्या होगा हमारा, 40 होगा, बी प्लस एफ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी प्लस एफ इज 40, ठीक है। वाइल 100% डिड नॉट चूज सीके, तो सीके के बाहर 100 लोग आएंगे, तो मतलब ये सी डी ई आपका 100 होना चाहिए, सी प्लस डी प्लस ई आपका 100 होना चाहिए। अब दोस्तों ये दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, तो कहना से बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ मेरा 140 हो जाएगा,
BCDEF 140 हो जाएगा, एंड ए को इंक्लूड करके 180 है, तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ ए कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक ये रिजल्ट मिल गया, इसके अलावा हमें इसके अंदर और कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अपना एनालिसिस रोक देना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को चलते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। सो हाउ मेनी पर्सन चूज ओनली सी के, सो ओनली सी के मतलब ए, तो वो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 40 आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन चूज एटलीस्ट वन अमंग लिवाइस एंड वाईएसएल। व्हाट इज इट मीन बाय एटलीस्ट वन अमंग लिवाइस एंड वाईएसएल, तो मतलब ये पूरा रीजन हो गया। ठीक है, ये पूरा रीजन हमें देखना है। तो हमें पता है ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा, BCDEF का समेशन, वो तो हमें पता है 140। सो कहना से ये क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा 140 हो गया, टीटा क्वेश्चन था, राइट। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, among the people who chose exactly one brand, which of the following brand was chosen as their favorite by maximum number of people। मतलब एक ब्रांड जिन्होंने चूज किया है तो वो कौन से वैल्यूज है, तो कहने से A, C एंड E से यही वैल्यू है, एंड ये वाला A, ठीक है ना, ये हमारे पास वैल्यूज है। ओके, अच्छा 70 तो कौन है जिन्होंने एरो के साथ में सी के चूज किया ही किया है, तो हमें तो एक ब्रांड वाला देखना है, तो हमें ये देखना है कि ACE में से कौन सा बड़ा आएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू तो हमें पता है 40 है, अब सी का वैल्यू क्या हो सकता है, तो B+C 50 है। ठीक है, B+F 40 है, तो क्या हम बता सकते हैं सी का वैल्यू क्या आएगा, नहीं बता सकते। सी कैन बी 40, 45, 50, इट कैन बी एनीथिंग, बी कैन बी 0 ऑल्सो। सिमिलरली C+D+E 100 है, तो हम E का वैल्यू भी नहीं बता सकते, ऐसा भी हो सकता है E 60 हो। सो ये तीन में कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा चूज हुआ है इंडिविजुअली, वो हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पे आंसर कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। यू आर नॉट गेटिंग एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ C एंड E, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट डिटरमाइन दैट विच वाज द स्टैंड अलोन मोस्ट फेवर्ड ब्रांड। ओके, चलो। Now look at this question. This is a very tricky question. Information regarding which of the following would be sufficient to determine the exact number of people who chose any combination of brand। मतलब बेसिकली सारे जो ABCDEF वेरिएबल के वैल्यू हमें कौन से पीस इंफॉर्मेशन से मिल जाएंगे। द नंबर ऑफ पीपल हु चोज CK एज their फेवरेट ब्रांड, CK एज their फेवरेट ब्रांड, मतलब हमें पूरा CK का अगर वैल्यू पता चल गया, क्या उससे कुछ फायदा होगा हमें, नहीं। क्यों फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी सी का वैल्यू पता है। देखो ये 70 है, ए का वैल्यू 40 है, B+F 40 है, तो हमें पता चल गया 40 + 70 + 40, ये हमारा 190 तो वैल्यू हमें ऑलरेडी पता ही है। सॉरी 190 नहीं, 150 हो जाएगा ना, तो 150 तो वैल्यू हमें पता ही है, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। सिमिलरली दूसरे से भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बट ये जो तीसरा पॉइंट है वो उसको देखो, द नंबर ऑफ पीपल, शायद मेरे पीछे जा रहा है तो आप PDF से देख सकते हो। The number of people who chose only CK and YSL as their favorite brand. So number of people who chose only CK and YSL as their favorite brand. Only CK and YSL मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला F। तो अगर मुझे F का वैल्यू पता चलेगा तो मुझे B का भी वैल्यू पता चल जाएगा, B का पता चल गया तो C का पता चल जाएगा, C पता चल गया मुझे। ठीक है, या इसमें मेरे पास और क्या है, D और E का वैल्यू हमें पता चलेगा इसमें से। जस्ट मोमेंट, इसमें हमें डी और ई का वैल्यू इससे पता चल सकता है, राइट। कैसे पता चलेगा, um, या शायद हमें कुछ और इंफॉर्मेशन दिया गया होना चाहिए। या लेट्स सी, आई थिंक वी आर मिसिंग देन सम मोर इंफॉर्मेशन। 90% चूज एग्जैक्टली वन ब्रांड, राइट। 90% चूज एग्जैक्टली वन ब्रांड, तो ये तो हमें पता है A+C+E हमें पता है 90 है, करेक्ट। तो A पता चल गया, C पता चल गया, तो हमें E भी पता चल जाएगा, E पता चल जाएगा तो D भी पता चल जाएगा। तो अगर हमें F का वैल्यू मिल गया, मतलब नंबर ऑफ पीपल हु चूज ओनली CK एंड YSL, ये पता चल गया, तो हम सारे वैल्यूज और निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन C। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेट अच्छा लगा। मैं एक और सेट रिलीज करने वाला हूँ जल्दी ही, सेट थ्योरी मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का, और भी काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग सेट आते रहेंगे। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि हफ्ते में 4 से 5 दिन मैं आपको DPP देता रहूँगा। सो आप इसका फ़ायदा ज़रूर से उठाना। ये कम्प्लीटली फ्री वीडियोज़ है जो आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना। दैट्स इट गाइस, कीप लर्निंग विद मी एंड या
स्टे ट्यून फॉर मोर ऑफ माई वीडियोस एंड एवरी डे मेरे साथ में 7 बजे जुड़ना मत भूलिए।